नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मैथिली चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन। तो प्लांट रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इससे पहले और सब वीडियो पड़ी हुई हैं, उसको आप देख सकते हैं सीक्वेंस में, सीरीज में, क्योंकि एक दूसरे से एक चीज़ें जुड़ी रहती हैं। देखिए प्लांट रिप्रोडक्शन में क्या कह रहा है। द प्लांट रिप्रोडक्शन is the production of new offsprings in the plants which can be accomplished by sexual, asexual or sexual reproduction। तो जिसको सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से किया जा सकता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेज न्यू इंडिविजुअल्स विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। Without the fusion of gametes, generally identical to the parent plants and each other, except when mutation occurs। तो ये म्यूटेशन जो है उसका अपवाद है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेज ऑफ स्प्रिंग्स बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स resulting in offsprings genetically different from the parents or parent। तो दोस्तों क्या होता है, दो प्रकार से होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूसेज offsprings by the fusion of gametes resulting in offsprings genetically different from the parent or parents। तो ये हो गया, दो प्रकार से रिप्रोडक्शन होता है। अब देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ये कैसे होता है। प्लांट्स हैव टू मेन टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन which new plants are produced that are genetically identical clones of the parent, identical clones of the parents। vegetative propagation, which involves a vegetative piece of original plant, budding, tillering, and apomixis, which is a replacement of sexual reproduction। तो दो प्रकार से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और जो कौन कौन से हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और एपोमिक्सिस, विच इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड्स जनरेटेड बाय एपोमिक्सिस आर ए मीन्स ऑफ asexual reproduction। Seeds generated by apomixis are a means of asexual reproduction involving the formation and dispersal of seeds that do not originate from the fertilization of the embryos। ये हो गया दोस्तों वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड एपोमिक्सिस। चलिए आगे देखते हैं। Apomixis is the mechanism of seed production without involving the process of meiosis and syngamy। एपोमिक्सिस में क्या होता है दोस्तों, सीड प्रोडक्शन होता है। एपोमिक्सिस इज ए मैकेनिज्म ऑफ सीड प्रोडक्शन विदाउट इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ meiosis and syngamy। It plays an important role in hybrid seeds production। The method of producing hybrid seeds by cultivation is very expensive for farmers। क्या बता रहा है, मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग हाइब्रिड सीड्स बाय कल्टीवेशन इज वेरी एक्सपेंसिव फॉर फार्मर्स। ऑल्सो बाय शोइंग हाइब्रिड सीड्स इट इज डिफिकल्ट टू मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स segregate during meiosis। Apomixis prevents the loss of specific character in the hybrid। It is cost-effective method for producing hybrid seeds।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन केस ऑफ एपोमिक्सिस नो meiotic division and fertilization of gametes to form a zygote take place. The entire process is cut short and seeds formation occurs. It can be of two types. तो एपिमोक्सिस कितने प्रकार की हो सकती है इसको बता रहा है। सैप्रोफाइटिक। In this type of apomixis occurs from the diploid saprophytes. Saprophytic in this type apomixis occurs from diploid sporophytes. चलिए दोस्तों, तो ये हो गया स्पोरोफाइटिक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब देखिए गेमेटोफाइटिक। इन दिस टाइप एपोमिक्सिस आकर्स फ्रॉम द हाइप्लोइड गेमेटोफाइट। हाइप्लोइड गेमेटोफाइट। Since the apomixis involve the formation of seeds without syngamy, all the seeds are genetically similar. चलिए अब चलते हैं। अब कैसे होता है स्टेम कटिंग। A plant cutting is a piece of plant that is used in horticulture for vegetative propagation. A piece of stem of the plant is placed in a suitable medium such as moist soil. If the conditions are suitable, the plant piece will begin to grow as a new plant, independent of the parent. This technique is also adapted in sugarcane. इस बता रहा है कि शुगरकेन में भी होता है। तो स्टेम कटिंग क्या होता है कि उसके तने को काट करके अगर आप ज़मीन में लगा देंगे दोस्तों, तो फिर एक नया पौधा बन जाएगा, जिसे शुगरकेन में होता है। चलिए आगे चलते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लेयरिंग। The stem that is attached to their parent plant is capable of forming roots on coming in contact with rooting medium. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है दोस्तों? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लेयरिंग। स्टेम दैट इज अटैच्ड टू देयर पेरेंट प्लांट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग रूट्स ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ए rooting medium. A layer is a rooted stem. A layer is a rooted stem following detachment from the parent plant. Many plants like strawberry, raspberry and jasmine are propagated by natural layering methods. अब चलिए आगे क्या होगा? ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में क्या होता है? ग्राफ्टिंग इज ए हार्टिकल्चर टेक्निक वेयर बाय टिश्यूज ऑफ प्लांट्स आर ज्वाइंड सो एज टू कंटिन्यू दियर ग्रोथ टुगेदर. द अपर पार्ट ऑफ द कंबाइंड प्लांट इज कॉल्ड द सीयोन while the lower part is called the root stock. चलिए आगे चलते हैं. The success of this joining requires that the vascular tissue grow together and such joining is called inosculation. This technique is most commonly used in asexual propagation of commercially grown plants for the horticulture and agricultural trade. तो ग्राफ्टिंग का प्रयोग जो दोस्तों होता है कमर्शियली ग्रोन प्लांट्स फॉर द हार्टिकल्चरल एंड एग्रीकल्चरल ट्रेड। ये था दोस्तों
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोस्तों दो प्रकार से होता था, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड एपोमिक्सिस। तो एपोमिक्सिस में क्या करते थे, हम सीड का फॉर्मेशन करते थे, ठीक है ना। और एपोमिक्सिस में दो प्रकार से होता है, स्पोरोफाइटिक और गेमेटोफाइटिक। अब आगे जो होता है दोस्तों, स्टेम कटिंग, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, तो ये हो गया सभी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व टू फंडामेंटल प्रोसेसेस। पहला क्या हो गया दोस्तों, मियोसिस, विच रीअरेंज द जीन्स एंड reduces the number of chromosomes, and fertilization। इन दो प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मियोसिस एंड फर्टिलाइजेशन, विच रिस्टोर्स द क्रोमोसोम्स टू ए कंप्लीट डिप्लॉयड नंबर। चलिए आगे चलते हैं। फ्लावर्स आर द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट एंड हेल्प इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पौधे जो दोस्तों, पौधों में जो बीज लगते हैं उनके फ्लावर्स के कारण होते हैं। अब देखेंगे हम लोग फ्लावर्स के पार्ट्स देखेंगे, यहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे पूछे जाते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स टाइपिकली कंटेन मेल एंड फीमेल पार्ट्स इन इट। बाइसेक्सुअल, तो आप देखते हैं कि जो पौधे हैं उनमें फूल जो है दो प्रकार के होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं, कुछ यूनिसेक्सुअल होते हैं। तो जो बाइसेक्सुअल होते हैं उनमें स्वतः पोलिनेशन हो जाता है। There are 4 main layers of the parts of the flower। क्या क्या होता है, कैलिक्स, it is a collection of sepal। कैलिक्स, it is a collection of sepals। अभी हम लोग इसको देखेंगे बढ़िया से, फिगर के माध्यम से देखेंगे। कैलिक्स क्या होता है, it is a collection of sepals फॉर्मिंग द फर्स्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर। फर्स्ट सर्किल ऑफ द फ्लावर, जो फूल आप देखते हैं ऐसे होता है। तो यहाँ पर जो निकली रहती हैं ये छोटे छोटे हरे रंग की पत्तियाँ कली की तरह, उन्हीं को सेपल्स कहते हैं, उसी के बारे में बात कर रहा है। कैलिक्स, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सेपल्स फॉर्मिंग द फर्स्ट सर्किल ऑफ फ्लावर। दीज आर टाइपिकली ग्रीन कलर्ड। तो ये कैसे होती हैं, ग्रीन होती हैं। ये देखिए ये सेपल्स है, ठीक है ना। और इसी सेपल्स का को जब एक साथ इनको नाम देंगे तो उसको कैलिक्स कहते हैं। और ऊपर से फूल हो जाता है, ये थैलेमस हो गया, ये पिडंकल हो गया। तो लाइए हम लोग देख लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, उसके बाद हम लोग को देखना आसान रहेगा। पिडंकल, थैलेमस, सेपल, और ये देखिए ये ओविल हो गया। ये देखिए इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और इन सबको मिला करके कार्पेल कहते हैं, ठीक है ना। तो कार्पेल जो होता है दोस्तों, ये प्लांट्स में फीमेल रिप्रोडक्शन पार्ट्स हैं। जिससे इसमें क्या क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एसेसो। और इसमें क्या हो गया, फिलामेंट एंड एंथर, ये मेल का होता है, मेल पार्ट्स होता है, और ये फीमेल होता है। कार्पेल जो होता है दोस्तों फीमेल होता है, फीमेल पार्ट्स, ठीक ना, फ्लावर के। आप इसको समझिएगा, ज़्यादा शब्दों पर न जाइए। अब देखिए ये पेटल्स हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको बता रहा था कैसे द सेपल्स हैव ए कलर कॉल्ड पेटालोइड। The sepals have a color called petaloid. Their main function is to protect the flower while it is still in the bud stage। तो कैलिक्स जो क्या करता है दोस्तों, जब फूल जो है बड में रहता है, फ्लावर जो बड में रहता है, जब कली रूप में रहता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करता है।
अब देखिए कोरोला, दिस लेयर इज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स। सेपल्स के कलेक्शन को कैलिक्स कहते हैं और पेटल्स के कलेक्शन को दोस्तों कोरोला कहते हैं। इट इज द सेकेंड सर्किल ऑफ द फ्लावर सुपेरियर टू दी कैलिक्स, माने कैलिक्स से ऊपर होता है, सुपेरियर टू दी कैलिक्स। द पेटल्स आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट हेल्प टू अट्रैक्ट इंसेक्ट एंड बर्ड्स टू द फ्लावर टू फैसिलिटेट पोलिनेशन। तो आप देखते हैं दोस्तों, जो पौधों का जो रंग, फ्लावर्स का जो कलर जो होता है वो क्या होता है, कीड़ों और पक्षियों को अट्रैक्ट करता है ताकि वो पोलिनेशन हो सके। मैं आपको एक स्पेशल बात बताता हूँ, अच्छी बात ये है दोस्तों कि जो रात वाले पौधे होते हैं वही आपको सुगंध देते हैं। ज़्यादा सुगंध जो है रात वाले पौधे देते हैं। वो क्या करते हैं कि रात में आप कलर को तो देख नहीं सकते, या कोई नहीं देख सकता, कीट भी नहीं देख सकते, तो वो सुगंध के माध्यम से फूल जो है अपने तरफ कीड़ों को और चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। और दिन वाले पौधे जो फूल जो दिन में फूलते हैं वो जो है अपने रंग के माध्यम से, डिफरेंट कलर के माध्यम से, रंग के माध्यम से कीटों को अट्रैक्ट करते हैं। आप जानते हैं कि रात की रानी एक बहुत अच्छा फूल है जो बहुत सुगंध देता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए, हम लोग देख लिए कैलिक्स, देख लिए कोरोला, देख लिए। अब देखेंगे हम एंड्रोसियम। एंड्रोसियम क्या है आइए देखा जाए। इट इज द थर्ड लेयर ऑफ फ्लावर सुपीरियर टू दी कोरोला। ये कोरोला के बाद जो होता है दोस्तों, ये थर्ड लेयर है। इट इज द मेल पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट। देखिए अब आने लगा, ठीक ना। एंड्रोसियम, इट इज द मेल पार्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ए प्लांट। एंड्रोसियम इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस। तो एंड्रोसियम दोस्तों स्टेमेन का कलेक्शन है। ईच स्टेमेन हैज द फॉलोइंग पार्ट्स, ठीक ना। तो स्टेमेन के कलेक्शन को दोस्तों क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। और मैं आपको बताऊं कि स्टेमेंस जो था मेल पार्ट होता है ये फ्लावर में। अब देखिए स्टेमेन में क्या होता है, एंथर। इट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द फिलामेंट। इट इज इंटरनली लोब्ड। पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर। तो इसी एंथर के अंदर जो दोस्तों पोलन ग्रेन्स रहते हैं, ठीक ना। It is present at the tip of the filament. It is internally lobed. Pollen grains are formed inside the anther. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। फिलामेंट तो हम लोग देख रहे थे दोस्तों, एंड्रोसियम, स्टेमेन के कलेक्शन को एंड्रोसियम कहते हैं। और स्टेमेन में क्या क्या आते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो एंथर जो होता है दोस्तों ये टिप ऑफ द फिलामेंट पर होता है। अब देखिए फिलामेंट क्या होता है। इट इज ए थिन स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द एंथर। तो जो एंथर को पकड़े रहता है। अभी हम लोग फ्लावर्स पर चलते हैं, इसको पढ़ने के बाद तो फिर अभी उसको देखेंगे अच्छे से, मैं दिखाऊंगा। अभी बार बार इधर उधर उछल कूद करने पर फिर दिक्कत हो जाएगी, इसको आप सिक्वेंशियली समझिए। फिलामेंट, इट इज ए थिन स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द एंथर। तो ये एंथर को पकड़े रहता है। अब देखिए जिम्नोसियम, हम लोग देखे पहले एंड्रोसियम फिर जिम्नोसियम। देखिए जिम्नोसियम, इट इज द फोर्थ लेयर ऑफ flowers. It is the collection of carpels and considered the female reproductive part of the plant. It has 3 parts. तो हम लोग क्या क्या देखे थे, कैलिक्स देखे थे जो सेपल्स का कलेक्शन होता है, उसके बाद हम लोग कोरोला देखे थे जो पेटल्स का कलेक्शन होता है, उसके बाद हम लोग देखे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम स्टेमेन का कलेक्शन होता है, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं
जिम्नोसियम। और जिम्नोसियम दोस्तों क्या होता है, ये कार्पेल्स का कलेक्शन होता है। और कार्पेल्स किसका पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो अंदर जो होता है सबसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर बता रहा है कि जिम्नोसियम जो होता है इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, स्टिग्मा, इट इज ए स्मॉल एंड स्टिकी लैंडिंग स्ट्रक्चर। द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम आर डिफरेंट फ्लावर्स। देख रहे हैं क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द सेम आर डिफरेंट फ्लावर्स। तो पोलन ग्रेन्स जो होता है दोस्तों, उस खुद स्वतः उसी फूल से जो फीमेल मेल पार्ट है उससे निकल के आ सकते हैं या किसी दूसरे फ्लावर से आ सकते हैं। फ्लावर स्टिक टू इट, दिस स्ट्रक्चर एक्ट एज ए लैंडिंग फॉर द इंसेक्ट आर बर्ड्स दैट एक्ट एज ए पोलिनेटिंग एजेंट। तो स्टिग्मा पर क्या होता है, स्टिग्मा पर आकर के कीट और बर्ड्स बैठते हैं, फिर वो उसका आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। अब देखिए स्टाइल, इट इज ए थिन स्टाक लाइक स्ट्रक्चर दैट होल्ड्स द स्टिग्मा। तो स्टाइल क्या करता है, स्टिग्मा को पकड़े रहता है, ये फीमेल में। और मेल में क्या होता था, एंथर को स्टेमन फिलामेंट पकड़े रहता था, माने फिलामेंट के ऊपर एंथर होता था और उसी एंथर में पोलन ग्रेन्स होते थे। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टाइल जो पकड़ी रह रही है स्टिग्मा को। 2 or more carpels may be fused together to vary degrees and entire structure। क्या कह रहा है, 2 or more carpels may fuse together, एक ही साथ, to varying degrees and the entire structure including the fused styles and stigma may be called pistil। क्या कह रहा है, इंक्लूडिंग द फ्यूड स्टाइल्स एंड स्टिग्मा में बी कॉल्ड ए पिस्टिल। चलिए तो चीज़ें क्लियर हो रही हैं, आगे चलते हैं। अब तीसरा फीमेल पार्ट्स होता है ओवरी। प्लांट्स में फ्लावर्स में ओवरी होता है और ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव पार्ट में भी होता है फीमेल में। इट इज ए बेस ऑफ स्टाइल, ठीक है ना, देख रहा है ना स्टाइल का बेस। अभी मैं दिखाता हूँ, अभी आपको आगे फ्लावर्स का वो दिख रहा है। आर द लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टिल, इट इज ए बेस ऑफ द स्टाइल आर द लोअर पार्ट ऑफ द पिस्टिल एंड कंटेन्स द ओवुल्स। इसमें ओवुल्स होते हैं विच कंटेन द फीमेल गैमेट्स, जिसमें फीमेल गैमेट्स होते हैं जो बाद में फर्टिलाइज होकर पोलन ग्रेन्स के माध्यम से फिर नए बीज को जन्म देते हैं। चलिए तो जो हम लोग इतना कहानी देखे दोस्तों, उसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो लाइए इसको एक बार इरेज कर देते हैं, फिर हम आपको बढ़िया से बताते हैं। देखिए तो हम लोग का जो पहला पॉइंट हम लोग देखे सीक्वेंस सब देखेंगे तो आप जानते हैं ना कि विज्ञान किसको कहते हैं। विज्ञान में दोस्तों क्रमिक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं, क्रमिक और तार्किक अध्ययन को विज्ञान कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, कैलिक्स किसको कहते थे, इस सेपल्स के अध्ययन को हम लोग दोस्तों क्या कहते थे, कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स। और पेटल्स के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते थे, कोरोला। यहाँ पर नहीं लिखा है, मैं आपको लिख देता हूँ। कोरोला हो गया, पेटल्स कोरोला हो गया इसको। चलिए ठीक है, पतला ही सही है। अब देखिए एंड्रोशियम, एंड्रोशियम जो होता है दोस्तों ये मेल पार्ट होता है, ठीक है ना। एंड्रोशियम, स्टेमेन के कलेक्शन को हम लोग एंड्रोशियम कहते थे, एंड्रोशियम।
एंड्रोशियम हो गया। अब देखिए स्टेमेन के कलेक्शन को हम लोग एंड्रोशियम कहते थे, और स्टेमेन के भाग क्या क्या थे, ये हो गया एंथर, ये जो आप देख रहे हैं ये एंथर है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, ये फिलामेंट है। तो वही कह रहा था कि फिलामेंट के ऊपर जो क्या होता है, एंथर लगा रहता है। अब चलिए, अब हम लोग देखेंगे जिम्नोशियम। तो इसमें देखिए कार्पेल्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं, गाइनो, गाइनो माने जो स्त्री प्रसूति वाला का अध्ययन कहते हैं उसको। डॉक्टर आप देखते हैं कि गायनोकोलॉजी, जो बाल बच्चे जिन डॉक्टर्स के यहाँ होते हैं, जो लोग उसको इस में अपना डॉक्टरी करते हैं, उसको गाइनो कहते हैं। तो देखिए उसी तरह से कार्पेल्स के कलेक्शन को दोस्तों गाइनोशियम कहते हैं, गाइनोशियम। और अब देखिए कार्पेल्स में क्या क्या आपको मिल रहा है, ये सबसे ऊपरी भाग देख रहे हैं, ये स्टिग्मा हो गया। लाइए चेंज कर लेते हैं कलर। चलिए, ये हो गया स्टिग्मा। अब देखिए स्टिग्मा के बाद आप देख रहे हैं कि ये है स्टाइल, स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल है, और उसके बाद ये दोस्तों क्या है, ओवरी है। तो दोस्तों हम लोग फ्लावर्स के सभी पार्ट्स देखने के बाद हम लोग देखेंगे पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो आप जानते हैं कि पोलिनेशन क्या होता है, लेकिन हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं किन टर्म्स में इनको डिफाइन किया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम आर अनदर फ्लावर्स, सेम आर अनदर फ्लावर्स इज नोन एज पोलिनेशन। तो एंथर का जो है स्टिग्मा तक पहुंचना ही पोलिनेशन कहलाता है दोस्तों। इट कैन बी काज्ड बाय इंसेक्ट्स, बर्ड्स, विंड्स, वाटर एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। मानव भी तो जानवर ही है, बुद्धिमान जानवर है मानव। दीज आर टुगेदर कॉल्ड एज पोलिनेटिंग एजेंट्स, इन सबको पोलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि पोलिनेशन किन किन के माध्यम से हो सकता है, इंसेक्ट, बर्ड्स, विंड्स, वाटर एंड एनिमल्स। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए टाइप्स ऑफ पोलिनेशन, जिसमें देख रहे हैं सेल्फ पोलिनेशन देख रहे हैं। सेल्फ पोलिनेशन इज व्हेन द पोलन ऑफ, सेल्फ पोलिनेशन इज व्हेन द पोलन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। क्या कह रहा है, सेल्फ पोलिनेशन इज व्हेन द पोलन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ठीक है ना। तो सेम प्लांट में और या तो एक ही फ्लावर में पोलिनेशन हो, या सेम प्लांट के दो फ्लावर्स मिल करके पोलिनेशन करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेल्फ पोलिनेशन कहेंगे। मेनी फ्लावर्स दैट आर hermaphrodite bisexual, many flowers that are hermaphrodite bisexual see this kind of pollination। तो जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं उन्हीं में इस प्रकार का पोलिनेशन देखा जाएगा। मेनी फ्लावर्स हैव वेरियस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, टू प्रिवेंट self pollination or promote cross pollination because the seeds formed as a result of self pollination are not of genetic variations and hereditary। ठीक है ना, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में दोस्तों जो सीड्स होती है उसमें आर नॉट ऑफ जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेल्दी नहीं होती है, और वेरिएशंस भी नहीं होता है। भाई दो लोगों का मिलन होगा तब तो वेरिएशंस होगा।
चलिए, तो ये सेल्फ पोलिनेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन इज द व्हेन पोलन ऑफ वन फ्लावर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। तो क्रॉस पोलिनेशन में दो प्लांट्स का होना जरूरी है, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन ब्रिंग्स अबाउट जेनेटिक वेरिएशन in the species and allow the plants to withstand changes in the environment better। तो जो पर्यावरण में बदलाव हो रहे हैं, आज देख रहे हैं कि तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, तो उनके लिए ये रेजिस्टेंट का काम करते हैं। क्रॉस पोलिनेशन जो दोस्तों, क्रॉस पोलिनेशन के माध्यम से जो सीड्स और सीड्स से पौधे जो उत्पन्न होंगे वो इन सब बदलावों को सह लेंगे। Once the pollen has landed on the stigma of a flower, the pollen tubes develop to transfer. The pollen tubes develop to transfer the pollens to the ovules, which contain female gametes. ओव्यूल्स में फीमेल गैमेट्स होता है, आप सभी जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसीलिए जब आदमी बेसिक चीज पढ़ लेता है, तो हम लोग फ्लावर्स के बारे में अच्छे से देख लिए हैं, तो हमको ये समझने में समस्या नहीं हो रही है। अब देखिए डाइकोगेमी, द राइपनिंग ऑफ स्टेमेन, द राइपनिंग ऑफ स्टेमेन एंड पिस्टिल्स ऑफ ए फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, नोन एज डाइकोगेमी। क्या कह रहा है कि दी राइपनिंग ऑफ स्टेमेन्स एंड पिस्टिल्स ऑफ ए फ्लावर एट डिफरेंट टाइम्स सो दैट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड, नोन एज डाइकोगेमी। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो एक ही फूल माने सेल्फ फर्टिलाइजेशन या सेल्फ पोलिनेशन न हो सके, इसके लिए ये तरीका अपनाते हैं पौधे के अलग अलग पर। अब देखिए प्रोटैंड्री, स्टेमेन्स मैच्योर बिफोर ओवरी, स्टेमेन मैच्योर बिफोर ओवरी एंड प्रोटोगेमी, ओवरी मैच्योर प्रियर टू स्टेमेन। तो प्रोटोगेमी और प्रोटांड्री, तो प्रोटो में क्या होता है, ओवरी पहले मैच्योर हो जाती है, और प्रोटांड्री में स्टेमेन पहले मैच्योर हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। मेगास्पोरोजिनेसिस, megasporogenesis results in the formation of female gametes and microsporogenesis results in the formation of male gametes। तो मेगास्पोरोजेनेसिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये दो टर्म्स हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो मेगा हो गया रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट्स, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट्स। चलिए आगे देखते हैं ये क्या होते हैं। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, एंथर्स कंटेन द पोलन मदर सेल, एंथर्स contain the pollen mother cells, second diploid, that undergoes meiosis to form microspores. Tetrad is the result of microspore mother cells dividing and formation of 4 microspores। अब देखिए एंथर releases the microspores pollen grains when it is mature। Anther releases microspores pollen grains when it is mature। अब चलिए देखते हैं दोस्तों मेगा स्पोरोजिनेसिस। मेगा स्पोरो एंगियम, मेगा स्पोरो एंगियम आर द ओवुल्स, they are in the ovary
They are in the ovary and contain the female gametes. Megasporogenesis is the formation of megaspores from megaspores mother cells. चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, अब ये खत्म ही होने वाला है। डिप्लॉइड, अब देखिए, द रिजल्टेंट ऑफ द म्यूसिस ऑफ मेगास्पोर मदर सेल इज 4 haploid megaspore cells. Of the 4 cells that form, only one in is functional while other degenerate. Of the 4 cells that form, only one is functional while other degenerate. अब देखिए डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में देखते हैं दोस्तों, इट हैपेंस इन एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स। डबल फर्टिलाइजेशन, इट हैपेंस इन एंजियोस्पर्म्स, जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं। दिस इज बिकॉज द मेल गैमेट्स दैट इंटर्स द ओव्यूल हैज टू न्यूक्लियाई। One of the male gametes fuses with female gametes to form a diploid zygote, whereas the other one forms a triploid endosperm by fusing with the diploid polar nuclei. Zygote divides to form future plants. Zygote divides to form future plants, whereas the endosperm provides nutrition to the developing embryo. Zygote divides to form future plants, whereas ये humans में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। Zygote divides to form future plants, whereas endosperm provides nutrition to the developing embryo. After fertilization, ovary becomes fruit. ओवरी क्या बन जाती है दोस्तों? फ्रूट्स में। एंड ओव्यूल्स बिकम द सीड्स। ओवरी फ्रूट्स बन जाती है और ओव्यूल्स क्या होते हैं दोस्तों? सीड्स बन जाते हैं। तो ये हम लोग देख लिए फ्लावर्स के पार्ट और फ्लावर्स में फर्टिलाइजेशन कैसे कैसे होता है। तो दोस्तों ये इसका कंसेप्ट थियरी वाला पोर्शन खत्म हुआ। अब आगे बचता है क्वेश्चन, तो चलिए उनको देखते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्लांट रिप्रोडक्शन से जो क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर में, उनको देख लेते हैं हम लोग। 12-13 प्रश्न है। तो देखिए क्या कह रहा है कि टू स्टडीज मेयोसिस इन प्लांट्स, मियोसिस इन प्लांट, मेयोसिस का इन प्लांट, द बेस्ट पार्ट वुड बी। तो मेयोसिस किस में देखा जा सकता है बताइए? टू स्टडी मेयोसिस इन द प्लांट द बेस्ट पार्ट वुड बी। तो बेस्ट पार्ट कौन सा होगा दोस्तों? तो एंथर्स होगा। एंथर्स किसका पार्ट है? ये फ्लावर का मेल पार्ट्स है, ठीक है ना, एंथर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। टू स्टडी मेयोसिस इन प्लांट्स द बेस्ट पार्ट वुड बी एंथर्स। इन दिस द पोलिनेशन इज फॉर्म्ड आफ्टर द मेयोसिस। In this, the pollination is formed after the meiosis, which is actually immature male gametes. Stamens are in the form of male genital, and carpels are in the form of egg-born female. तो स्टेमेंस जो होते हैं दोस्तों, ये मेल हो गए, मेल जेनिटल, और कार्पल्स जो हो गए दोस्तों फीमेल हो गए। तो सबसे अच्छा जो है मेयोसिस देखने के लिए एंथर होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हम सब लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। ये स्टेमेन हो गया और
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को मिलकर के इसको दोस्तों पिस्टिल कह देते हैं या कार्पेल कहते हैं, पिस्टिल या कार्पेल। तो ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं, आप लोग इसको देख सकते हैं अच्छे से, ठीक ना। ये सेपल हो गया, ये ओविल हो गया, ये स्टाक हो गया, और ये हो गया रिसेप्टेकल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अच्छे से दिखाने की बताने की कोशिश की गई है आपको। एंथर, फिलामेंट, ठीक है ना, ये स्टेमेन के पार्ट हैं। और ये देखिए दोस्तों पिस्टिल के पार्ट हो गए। स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी के अंदर क्या मिलते हैं दोस्तों, ओविल्स पाए जाते हैं। ये अदर सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन में क्या होता है दोस्तों कि एक ही फूल के पार्ट्स भाग लेते हैं, या एक ही प्लांट के, एक ही फूल या एक ही प्लांट, वन प्लांट। जैसे आप फ्लावर्स दिखाया है लेकिन आप प्लांट में कंफ्यूज कर जाएंगे। और क्रॉस पोलिनेशन में दोस्तों क्या होता है कि दो प्लांट्स का होना जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है आप जानते ही हैं। चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर करिए दोस्तों। Which one of the following statement is are correct regarding vegetative propagation of plant? वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में क्या सही है बताइए। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्रोड्यूसेज क्लोनल पॉपुलेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में दोस्तों क्लोन बनता ही है, एकदम सही है। अब चलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वायरस, ये कैसे हो सकता है, वायरस कैसे एलिमिनेट होगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन कैन बी प्रैक्टिस्ड मोस्ट ऑफ द ईयर्स, ठीक है ना। तो इसको पूरे साल लगभग आप ये सब क्रिया कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यही दोनों करेक्ट है, पहला और तीसरा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ISPRI 2014 में पूछा हुआ था, वेजिटेटिव और कोलोनल प्रोपोगेशन इज एन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। चलिए इसको बहुत देखना नहीं है। अब देखिए एम्ब्रियो इज फाउंड इन, एम्ब्रियो कहाँ मिलता है बताइए। एम्ब्रियो इज फाउंड इन, तो ये दोस्तों एम्ब्रियो होता है आपको सीड्स में मिलेगा। फिर वही सीड्स को जब आप फिर खेत में डाल देते हैं तो फिर जम करके प्लांट्स का रूप ले लेता है। एम्ब्रियो इज फाउंड इन सीड्स, फ्लावर्स में नहीं पाया जाएगा। फ्लावर्स में दोस्तों ओवरी के अंदर ओवल्स पाए जाते हैं जो अभी फर्टिलाइज्ड नहीं होते हैं, और एम्ब्रियो का निर्माण सीड्स में होता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। प्लांट्स आर फार्म्ड लाइक पेरेंट प्लांट्स फ्रॉम, किसके माध्यम से, अपने माता पिता की समान ही पौधे बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। स्टेम कट इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जिसको क्लोनिंग भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सीड्स में उससे डिफर भी हो सकते हैं क्योंकि वो फर्टिलाइज हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सब हम लोग देख चुके हैं, जब थियरी वाला पोर्शन देख लेंगे तो इन सबको देखने की बहुत ज़रूरत नहीं है। तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करके कर सकते हैं ताकि आपके दूसरे मित्र तक भी पहुंच सकता है, ठीक है ना दोस्तों। ये उसी लिए आपको रिमाइंड करने के लगाया गया है क्योंकि आपका लाइक और शेयर हम लोग को मोटिवेशन प्रदान करता है। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ दिज प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग। इसमें से कौन कौन स्टेम कटिंग के माध्यम से किया जाता है दोस्तों बताइए।
तो ग्रेप्स, अंगूर जो जानते हैं ना, उसको भी स्टेम कटिंग के माध्यम से ही लगाया जाता है। कार्नेशन, ये भी स्टेम कटिंग हो गया। कोकोआ भी हो गया। और देखिए बाउगेनविलिया जो देख रहे हैं दोस्तों, ये भी है। मैं बाउगेनविलिया को बताना ये चाहता हूँ कि एक परीक्षा में इसकी स्पेलिंग पूछा था बाउगेनविलिया का, बाउगेनविलिया। तो इस प्रकार से चारों में दोस्तों स्टेम कटिंग के माध्यम से क्या होता है, प्रोपोगेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो बाउगेनविलिया का स्पेलिंग टेस्ट स्पेल भी याद कर लीजिएगा। देखिए प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट बाय स्टेम कटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर प्लांट प्रोपोगेशन मेथड बाय फॉर वुडी श्रब्स एंड ornamental plants. For woody shrubs and ornamental plants, this is also a good technique for house plants. Some of the plants propagated by stem cutting are sugarcane, ganna, grapes, rose, cocoa, carnation, duranta, bougainvillea, etc. Although in plants like cocoa, propagation by seed is also popular. तो कोकोआ में दोस्तों या तो स्टेम कटिंग के माध्यम से भी प्रोपोगेशन हो सकता है और सीड के माध्यम से भी प्रोपोगेशन हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक। स्वीट ऑरेंज, तो दोस्तों आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो देखिए स्वीट ऑरेंज प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय ग्राफ्टिंग टेक्निक, ये करेक्ट है। जैस्मिन प्लांट इज प्रोपोगेटेड बाय लेयरिंग टेक्निक, ये भी सही है। चमेली का दोस्तों, जैस्मिन में चमेली होता है तो ये इसमें लेयरिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाता है, तो ये दोनों करेक्ट है। ठीक है ना, आपसे करेक्ट पूछा होता है तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लेयरिंग इज ए वे टू ग्रो न्यू प्लांट्स एज इन द केस ऑफ जैस्मिन फ्रॉम एग्जिस्टिंग प्लांट विदाउट हैविंग टू टेक एनी कटिंग्स। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कटिंग नहीं की जाती है, ठीक ना। लेयरिंग from existing plant without having to take any cuttings. In a nutshell, bury parts of the stem or branch in the soil and new roots and shoots will form. ठीक है ना, किसी पौधे के तने को या किसको, bury part of the stem or branch, या किसी टहनी को आप जमीन में गाड़ देंगे जैस्मिन के, तो वहां से एक पौधा निकल के आ जाएगा। एंड न्यू प्लांट, न्यू रूट्स एंड शूट्स विल फॉर्म। ग्राफ्टेज इज ए हार्टिकल्चर टेक्निक वेयर बाय टिश्यूज फ्रॉम वन प्लांट आर इंसर्टेड into those of another so that the two sets of vascular tissue may join together. So that the vascular tissue may join together. Sweet orange plant is propagated by this technique. क्या कह रहा है, graftage is a horticultural technique whereby tissues from one plant are inserted into those of another so that the two sets of vascular tissue may join together. Sweet orange plant is propagated by this technique. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर करें दोस्तों फटाफट। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द टर्म ऑफ लाइफ साइकिल। पौधे का जो है कौन सा भाग लाइफ साइकिल में महत्वपूर्ण है, बताइए। तो आप सभी जानते हैं लाइफ साइकिल जो है बिना फ्लावर के हो नहीं सकती। ऑप्शन ए करेक्ट होगा दोस्तों, पौधों में।
चलिए आगे बढ़ते हैं। विच थ्री इन द circumstances among these are the most necessary in the germination of single seed plant? सिंगल सीड प्लांट्स के जर्मिनेशन में दोस्तों क्या क्या जरूरी होता है बताइए। तो देखिए दोस्तों, वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन, इन तीनों की जरूरत होती है, ठीक है ना। सॉइल एकदम जरूरी नहीं है जर्मिनेशन के लिए, सॉइल जरूरी नहीं। देखिए आप घर में मैंने चने को भिगो करके कपड़े में बांध देते हैं तो जर्मिनेट हो जाता है, तो सॉइल की जरूरत नहीं जर्मिनेशन के लिए, ठीक है ना। क्या क्या चीज़ जरूरी है? वाटर जरूरी है, नमी जरूरी है, प्रॉपर टेम्परेचर जरूरी है और ऑक्सीजन जरूरी है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन आर द मोस्ट रिक्वायर्ड substances circumstances for the germination of seeds while the sunlight is not essential, ठीक है ना। There are two types of germination of seeds in plants, apigeal and hypogeal, apigeal and hypogeal। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स? किस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है बताइए। तो आपको सीधे दिख रहा है दोस्तों, लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, रहे तो फिर भी अच्छा, ना रहे तो फिर भी अच्छा। लेकिन जर्मिनेशन के लिए ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है, वो भी टेम्परेचर में प्रॉपर टेम्परेचर होना चाहिए। कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच ऑफ द एबव इज आर पोलिनेटिंग एजेंट्स, ठीक है ना। कौन कौन से पोलिनेटिंग एजेंट्स है ये आपको बताना है। तो देखिए, बैट्स, बर्ड और बीज, ये सभी जो दोस्तों आप देख रहे हैं ये सभी पोलिनेटिंग एजेंट्स है। इसके अलावा क्या आ जाएगा दोस्तों? विंड, ठीक ना, वाटर, विंड, वाटर, एनिमल्स, ये सभी दोस्तों क्या हैं? जर्मिनेटिंग एजेंट हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग देख चुके थे, आपको देखने की जरूरत नहीं बहुत, मान लीजिए इसको देखना होगा तो वीडियो को पास करके पढ़ लीजिएगा। सीड्स दैट इज करेक्ट चेंज्ड एवरी ईयर इज नोन एज, सीड दैट इज चेंज्ड एवरी ईयर इज नोन एज, उसको किस नाम से जानते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो हाइब्रिड सीड्स होती है, हाइब्रिड सीड्स को आप ले आकर एक बार अपने फील्ड्स में शो कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि फिर दोबारा उससे जो उत्पन्न सीड्स होंगे उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं। हाइब्रिड सीड्स को केवल एक बार ही यूटिलाइज किया जा सकता है। हाइब्रिड सीड इज चेंज्ड एवरी ईयर इन एग्रीकल्चर एंड गार्डनिंग। हाइब्रिड सीड इज सीड प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉस पोलिनेटेड प्लांट्स। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन इज प्रीडोमिनेंट इन एग्रीकल्चर एंड होम गार्डनिंग। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसका लास्ट प्रश्न है, ए बाइसेक्सुअल फ्लावर इफ एंड्रोसियम एंड जिम्नोसियम मेच्योर एट डिफरेंट टाइम द फिनोमेनन इज नोन एज, किस नाम से जानते हैं बताइए। तो उसको दोस्तों हार्कोगेमी के नहीं, डाइकोगेमी के नाम से जानते हैं, हम लोग देखे थे। इसमें फ्लावर्स के जो पार्ट्स हैं दोस्तों, इन्हें बाइसेक्सुअल फ्लावर, एंड्रोसियम एंड जिम्नोसियम मेच्योर एट डिफरेंट टाइम द फिनोमेनन इज नोन एज डाइकोगेमी। तो इसमें अलग अलग टाइम पर मेच्योर होते हैं दोनों, ताकि पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन ना हो सके। सेल्फ पोलिनेशन को दोस्तों रोकने के लिए ऐसा होता है, पौधे भी अपनी सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना।
सेल्फ पोलिनेशन को रोकने के लिए डाइकोगेमी का टेक्निक का प्रयोग कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्लांट्स रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक यहीं पर ख़त्म हुआ। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं ताकि आपके मित्र तक भी पहुंचे, और चैनल के सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।